Hello friends. So in our last sessions we have discussed the steps to be followed while doing long sums of chapter number 5, that is admission of a partner, right? जब नया पार्टनर एंटर हो फर्म में तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और हमें ये भी पता है कि हमें बोर्ड में ये लोग 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाले हैं, दैट विल बी कंपलसरी, राइट? सो यहाँ पे मैंने एज ऑफ नाउ फोकस करवाया है आपको लॉन्ग सम्स पे, राइट? और मैंने आपको इन माय लास्ट टू लास्ट सेशन लॉन्ग सम्स में किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो भी आपको प्रॉपरली बताया है, लिखवा भी दिया है, राइट? इन आर लास्ट क्लास वी डिड द डिस्कशन अबाउट द गुडविल ट्रीटमेंट एज वेल. So in today's class what we are going to do is we are going to solve a one particular long sum in which there will be all the steps as well as that goodwill का point also, so that you will be clear कि मैंने आपको क्या क्या लिखवाया है. You will be having a proper idea about the same, right? So come on to your page number 208 of your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 208 पे आइए. Question number 8, that is Abha and Veena are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो उन लोगों ने दे के रखा है, करेक्ट? द balance sheet as on 31st March 17, that is before the admission, is already given to us, जिसमें liability side पे capital account of Abha and Veena is given, then general reserve is given, then workman compensation reserve is given, then investment fluctuation fund is there, creditors are there, bills payables are there. On the asset side there is goodwill, land and building, machinery, stock, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन बैंक, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एक्सपेंडिचर, राइट? सो इतनी सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट में दे के रखी है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन टू अस इज दे एडमिटेड रुशील एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2017, राइट? एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है. What they have given in our additional information is Rushil will bring 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash. The very important point friends, that is goodwill in cash. वो goodwill cash में लेके आ रहा है, correct? Value of land and building is to be increased by 17,000. is to be increased by 17,000 मानी कि मेरी अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है तो मुझे उसको 17,000 से बढ़ाना है. टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹17,000, मीनिंग देयर बाय वट एवर अमाउंट, वट एवर वैल्यू आई एम हैविंग, उसके अंदर मुझे ये 17,000 ऐड करने हैं. 17,000 से उसको इंक्रीज करना है, करेक्ट? Then the next point is value of machinery is to be decreased up to ₹32,000. तो अभी जो भी वैल्यू है उसको डिक्रीज करके 32 तक लेके जाना है. कि बाय बोला हो तो उतने से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वॉट एवर इट इज, एंड अप टू बोला हो तो वहाँ तक लेके जाना है, राइट? सो इन दिस केस 32,000 बोला गया है और क्वेश्चन में देखें तो मशीनरी इज ऑफ 40,000 रुपीज़. सो 40,000 की मशीनरी है जिसको मुझे 32 तक लेके जाना है, मीनिंग देयर बाय मेरी मशीनरी की वैल्यू को मुझे 8,000 से डिक्रीज करना है, करेक्ट? देन provision for doubtful debts, I mean bad debt, is to be kept at 10% on debtors. It is a good point. टिक मार्क करके रखते हैं, फिर विल डिस्कस. देन provision for outstanding electricity bill is to be made at ₹1,100, that we will create. Then new profit sharing ratio of all the partner is to be kept as 2:1:2. So can I say I am given here with the old ratio as well as the new ratio. तो मुझे मेरे sacrificing ratio find करने में it will be easy, करेक्ट? मुझे थोड़ा easy रहेगा मेरा sacrificing ratio find करने में, राइट? Prepare necessary journal entries and prepare revaluation account, partners capital account, cash and bank account and balance sheet, right? अब after admission. See friends, मैं अभी आपको ये सारे accounts बनाना सिखाऊंगी. Journal entries I'll be discussing orally. You are supposed to do it on your own. As of now what I'm doing is I am going to teach you how to make this accounts. और मैंने जैसे आपको स्टेप्स सिखाए हैं वो स्टेप्स फॉलो करते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है, दैट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, राइट?
तो याद करिए, ये क्वेश्चन शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? तो फर्स्ट स्टेप वॉज जस्ट जो भी कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट के बैलेंसेस है उसको पहले तो ओपनिंग बैलेंस करके लिख दीजिए, ऐसा था सबसे पहला स्टेप की पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करो इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, राइट? सो हियर इट इज़ आभा का 80,000 इज़ द कैपिटल, बीना का 60,000 इज़ द capital, and cash in bank balance is 2,000. So let me write that. Here I have already made the accounts. We are supposed to prepare the accounts in a proper particular format, right? So here in partners capital account, I'll be writing by balance brought down, it was 80,000, and I suppose how much it was, a minute, 60,000, correct? एंड कैश इन बैंक का क्या बैलेंस था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट वाज 2,000. ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट है तो उसका बैलेंस कौन सी साइड पे कैरी फॉरवर्ड यानी ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, और कैश एंड बैंक बैलेंस है तो उसका कौन सी साइड पे होगा, करेक्ट? इफ़ योर 11th बेस इज क्लियर, यू नो दैट ऑल द असेट साइड्स विल go to debit side and all the liability sides will go to क्रेडिट साइड, राइट? और वो मैंने स्टेप्स में स्पेसिफिकली लिखवाया हुआ भी है. सो यू मस्ट बी नोइंग द स्टेप्स वेरी प्रॉपरली, राइट? अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप एक बार लिख लो एंड उसके बाद क्वेश्चन शुरू करो, राइट? अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था? द स्टेप नंबर 2 वॉज वट एवर रिजर्व्स एंड सरप्लस इज देयर, वट एवर फ्री रिजर्व्स आर देयर, अगर आपको याद हो तो यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो. रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी है अपने, वो हमें क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, करेक्ट? सो लेट्स सी हमारे पास इस क्वेश्चन में एज ऑफ नाउ क्या क्या रिजर्व्स है. वी हैव द जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट? ये अपने पास तीनों रिजर्व्स है. एंड हियर आई कैन से फिक्टिशियस है. स्टेप नंबर 2 में ही दूसरा पार्ट क्या था कि वट एवर accumulated losses and fictitious assets are there to be distributed amongst the old partners in their old ratio. So we are having advertisement expenditure, advertisement campaign expenditure over here. अब उसके लिए पहले एक बार देख लो कि क्या क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दिस रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है. जस्ट गो थ्रू द सेम. क्या कोई भी एडजस्टमेंट है? नहीं है, राइट? देयर इज़ नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और लायबिलिटी क्रिएटिंग, राइट? सो कोई सच एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है. तो क्या करेंगे हम? ये जो भी चीज़ों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर स्पेसिफिकली दे के रखते तो कुछ अलग ट्रीटमेंट होता. दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन इन लेटर सम्स, राइट? सो हियर जनरल रिजर्व इज 18,000. वी विल डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमॉन्ग्स द पार्टनर्स. So by general reserve, that is old partners old ratio, so 2:1, it will be 12,000 and 6,000. Then by workman's compensation reserves, it was 4,500. Again it is 2:1, so 3,000 and 1,500. Then there was by investment fluctuation fund, how much it was? Let me check. 1,500, I suppose. Yes, 1,500. Again in the ratio of old partners, that is old ratio, old profit sharing ratio 2:1. So
1500. सी इसकी मैं जर्नल एंट्री अगर आपको यहीं पे डिस्कस कर लूँ तो इट विल बी व्हाट, जनरल रिजर्व्स, फंड्स, फ्री रिजर्व्स आर देयर, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ अमॉन्ग्स द पार्टनर्स. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू आबास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट. सेम वे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आबास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट. सेम वे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? क्योंकि उनकी क्रेडिट साइड थी, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो वो पर्टिकुलर रिजर्व विल बी डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड, राइट? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन आर लॉन्ग सम स्टेप्स वाला सेशन, राइट? सो ये हो गया. फिर अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सॉरी दैट एडवर्टीजमेंट कैंपेन अकाउंट भी है, जो अपने लिए क्या है, एक फिक्टिशियस असेट है. सो हियर आई विल बी राइटिंग टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन अकाउंट. कितना था, हाउ मच इट वॉज? इट इज 6000. सो अगेन 2:1, so 4000 and 2000, right? So step number 2 we are done with. Step number 2 हो चुका. Now let's move further with step number 3. Step number 3 में सबसे पहला part, the first part was distribute the goodwill और deal with the goodwill, right? goodwill का मैंने आपको सिखाया था. अब goodwill के और चलते हुए let's look at the adjustment that whatever is given, right? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Rushil will bring 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash. इन कैश हो तो क्या करना है, वो सब मैंने आपको लिखवा दिया है ऑलरेडी, राइट? सो नाउ आई विल बी डूइंग दैट पर्टिकुलर एंट्री. सबसे पहले तो 1 लाख की वो कैपिटल लेके आया है, राइट? सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज आई विल बी राइटिंग हियर सबसे पहले तो बाय कैश अकाउंट करके रुशिल का 1 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपये वो लेके आया इसलिए. कैश इन बैंक अकाउंट में हियर आई विल बी राइटिंग टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख एंड द जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट, राइट? ये तो हो गई जर्नल एंट्री की बात. नाउ ये तो कैपिटल की जर्नल एंट्री हमने कर ली. अब मैं क्या बात करने जा रही हूँ, दैट इज वो गुडविल लेके आया है, राइट? गुडविल ही इज ब्रिंगिंग इन टू कैश, करेक्ट? ऐसा हमें बोला है. अब आप याद करो तो सबसे पहला स्टेप क्या था? Step number 1 for goodwill was whatever old goodwill is there, if any, to be distributed amongst old partners in old ratio, correct? I have already explained you that, right? Whatever old goodwill is there, it is to be distributed amongst old partners in old ratio. हमने ये कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन में, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्या कोई ओल्ड गुडविल है अपनी? येस, इट इज़ देयर. इट इज़ 18,000. सो 18,000 की गुडविल को मैं क्या करूँगी, पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द 18,000 रुपीज़ का गुडविल, राइट? सो व्हाट विल आई राइट ओवर हियर इज टू goodwill account in old ratio, right? So 18,000 2:1, that is 12,000 and 6,000. ये क्या किया मैंने, ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. गुडविल है, असेट है, डेबिट पे होगी, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. सो आबास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट? हियर आई एम डिस्कसिंग द जर्नल एंट्रीज अलॉन्ग विद द सम, राइट? तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, राइट? देन the very next thing was he is bringing this goodwill in cash of rupees 24,000, right? ऐसा हमें बोला गया है. what will be the journal entry for the same? journal entry इसकी क्या रहेगी फ्रेंड्स? सबसे पहले ये बताइए कि what will be the journal entry when the partner is bringing in the goodwill? पैसे लेके आया वो goodwill के लिए, right? so first entry will be cash account debit to premium for goodwill account.
24,000. आई होप यू आर क्लियर विद द सेम, राइट, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, राइट. सो कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. एंड सेकेंड विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आभा and to Beena. In their which ratio? In their which ratio? In their sacrificing ratio, right? So here what we are supposed to do is we are supposed to find out the sacrificing ratio amongst the partners. So let's do that first. Sacrificing ratio find कर ले. Sacrificing ratio is equals to old ratio माइनस न्यू रेशियो, राइट. आभा की मैं बात करूँ तो आभा का ओल्ड रेशियो वॉज 2/3 माइनस न्यू रेशियो इज हाउ मच, आई नीड टू चेक. हाँ, ओल्ड रेशियो इज 2/3 एंड न्यू इज 2, 1 and 2, so 2/5. 2/5 taking 15 as an LCM. 10 minus 6 comes to 4/15, correct. I hope this particular mathematical part is clear with you. आप लोगों ने बहुत करा हुआ है पास्ट में ये सब प्रैक्टिस, LCM लेना और एवरीथिंग. देन बीना, it is 1/3 minus 1/5, again taking 15 as an LCM, so 5 minus 3 comes to 2/15. So it will be 4:2. I can say 2:1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो सी बाय कोइंसिडेंस यहाँ पे ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है, पर हर टाइम सेम नहीं आएगा. सो वेन एवर ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज गिवन यू आर सपोज टू डू इट दिस वे, राइट. आपको ये छोड़ नहीं देना है कि ओल्ड ही ले लेता है, चलो सेम ही तो है, जी नहीं, यू आर सपोज टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, राइट. सो हियर 24,000 रुपीज़ जो है अपने, वो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के आभा एंड बीना में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 16,000 एंड 8,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आभा's कैपिटल अकाउंट टू बीना's कैपिटल अकाउंट. नाउ फॉर लेट्स रिकॉर्ड द सेम. कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, सो आई विल बी रिकॉर्डिंग इट ओवर हियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके 24,000 एंड हियर प्रीमियम फॉर गुडविल टू आभा टू बीना है, सो हियर आई विल बी रिकॉर्डिंग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके 16,000 and 8,000. Remember friends, even though you become a pro in solving this admission ke sums and all, I request you all that please write a journal entry the way I have written over here, and then only do the goodwill का ledger posting. गुडविल के लिए हमने जो भी ये लेजर पोस्टिंग करा कैश अकाउंट में एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्लीज़ आप एक बार जर्नल एंट्री लिखना, उसके बाद ही करना, भले आपको आगे जाके बहुत अच्छे से ये चीज़ आ जाए फिर भी, राइट. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू द सेम, राइट. देन द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब जो भी असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूड अमाउंट दिया हुआ है, इफ़ यू आर गेटिंग गेन्स इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इफ़ यू आर गेटिंग लॉसेस इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. मैंने ये भी आप लोगों को स्टेप्स में ऑलरेडी लिखवा दिया है, राइट. तो ये हो जाने के बाद let's look at the other adjustments that they have given. Value of land and building is to be increased by 17,000. चलो फाइन, कितनी है एज ऑफ नाउ वैल्यू 72,000 है. चलो फाइन, लिख लेते हैं इवैल्यूएशन अकाउंट में. सबसे पहले तो डेफिनेटली इट इज़ अ गेन, तो बाय land and building account 17,000 or 72 plus 17 comes to 89,000 which will be recorded over here. मैंने आपको ये भी लिखवाया हुआ है कि whatever the revised values are there you are supposed to record in the new balance sheet. So land and building 89,000. Then the next thing they have given to us is
वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज्ड अप टू 32,000, 40,000 है जिसको डिक्रीज करना है 32,000 तक, अप टू मानी 32,000 तक, राइट। सो 8,000 से उसको डिक्रीज करेंगे, फाइन, इट इज़ अ लॉस। असेट की वैल्यू डिक्रीज हो तो इट इज़ डेफिनेटली अ लॉस, उतना हमें समझ में आना चाहिए। तो टू मशीनरी अकाउंट 8,000 and here the new value will be recorded। ये कभी मत भूलना कि यहाँ पे नई वैल्यू साथ साथ में लिख देनी है। गलती ये ना हो जाए कि हम रिवैल्यूएशन में तो सही लिख दें, फिर न्यू बैलेंस शीट में लिखना रह जाए। See, what I am telling you is the general mistakes that students are making always. So मैं आपको हमेशा जब भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, मैं साथ साथ में आप क्या मिस्टेक्स करने वाले हो ना वो भी बोलती जाऊंगी, so that you will be वेरी मच क्लियर कि हाँ फाइन ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें नहीं करना है, राइट। चलो देन प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स, राइट। यहाँ पे डेटर्स है 24,000 के, समझना आप अच्छे से ये पॉइंट को, 24,000 के डेटर्स है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 24,000 के डेटर्स है, उसका 10%, यानी कि 2,400 का रिजर्व आई एम सपोज टू क्रिएट। बट कैन आई से 2,000 का रिजर्व दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, 2,000 का रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, मुझे तो सिर्फ 400 ही इंक्रीज करने हैं। एंड रिजर्व इंक्रीज हो रहा है मानी कि मेरा लॉस इंक्रीज हो रहा है, डेटर पे रिजर्व है, राइट। सो चांसेस आर गेटिंग हायर टू गेट द बैड डेट्स, राइट। सो इट इज़ इन अ वे लॉस फॉर मी। पर वो लॉस कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2,000 के बैड डेट रिजर्व्स आर ऑलरेडी देयर और मुझे 2,400 करने हैं, तो कैन आई से 400 से वो लॉस मेरा इंक्रीज हुआ। So let's record the same. Two, bad debt reserve account 400 and the so and debtors it is 24,000 minus bad debt reserve it is 2,400, so 21,600, right। करेक्ट। ये हो गया अपना थर्ड एडजस्टमेंट, आई मीन यस थर्ड। चलो फिर प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1100। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल जो आउटस्टैंडिंग है उसका प्रोविजन ही करना बाकी है, तो अगेन वी आर सपोज टू पे, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अस, लॉस फॉर अस, राइट। सो अगेन आई नीड टू मेक एन एंट्री इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। अरे ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट, यस, टू outstanding electricity bill account 1100, right, and that is our liability, of course we are supposed to pay, so I'll be recording it over here, outstanding electricity bill 1100, correct, this is done। then next is that's all, हो गया। अब ये स्टेप हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप वॉज व्हाट, whatever is untouched, whatever is there which is remaining in our old balance sheet, उसको फटाफट से न्यू बैलेंस शीट में लेके चले जाओ, फाइन। चलो यहाँ पे देख ले लाइबिलिटी में क्या क्या रह गया है। येस, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दैट वी आर सपोज टू रिकॉर्ड दैट इज 28,000 एंड 12,000, और फिर गुडविल डन, लैंड एंड बिल्डिंग डन, मशीनरी डन, डेटर्स डन, इन्वेस्टमेंट्स बाकी रह गए हैं और स्टॉक बाकी रह गया है, राइट। इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक्स आर, स्टॉक इज left to be recorded, so let's record the same। बैलेंस शीट में here it was creditors 28,000, bills payable it was 12,000, then investments 8,000 and stock was I suppose
36,000. जस्ट लेट मी reconfirm the same. गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. Investments 8,000, stock is 36,000, right? तो stock 36,000, right? तो ये हमने लिख दिया. जो भी अनटच्ड अमाउंट थी, जो भी ऐसी चीज़ थी जिसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो हमने फटाफट से लिख दी, राइट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द नेक्स्ट स्टेप वाज क्लोज डाउन द अकाउंट्स. क्लोज कर लो अकाउंट्स को, ऐसा था. सो फटाफट से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते चलते हैं. हियर द टोटल इज 17,000, राइट? उसमें से 8,400 एंड 1,100 को माइनस करूँ, यू विल बी गेटिंग 7,500 will be distributed revaluation profit transferred to Abha and Bina in the ratio of 2:1, that is 5,000 and 2,500. So here I'll be recording by revaluation account 5,000 and 2,500, करेक्ट. आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं क्लोज कर रही हूँ अकाउंट्स को. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, राइट? चलो फिर अब कैपिटल अकाउंट्स को भी क्लोज कर दे. सुशील का इट इज 1 lakh and here the balance will be again 1 lakh. Then here you can use the calculators and make the totals. It is 78,500. 78,500. उसमें से ये सब चीज़ें 6,000 and 2,000 माइनस करेंगे, so it will be 70,500. Here it will be 1,17,000. You can use the calculators, right? 1,17,000 में से 12,000 and 4,000 माइनस करेंगे, you will be getting 1,01,000. Here it will be to balance carried down, जिसको कहाँ कैरी डाउन करना है? डेफिनेटली इन आवर बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट्स, आभा, बीना एंड रुशील. It is 1,01,000, 70,500 and how much it was? Yes, 1 lakh. आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? कैपिटल अकाउंट्स है तो उसको हम कहाँ पे लेके चलेंगे? डेफिनेटली इन आवर बैलेंस शीट, राइट? सो इट विल बी 2,71,500. फिर कैश एंड बैंक अकाउंट को भी क्लोज करेंगे. It is 1,26,000. Here also 1,26,000. So by balance carried down 1,26,000, which will go to where? In the balance sheet, cash and bank 1,26,000. Just make a total फटाफट से. It is 3,12,600 over here, and same with the case on the asset side, 3,12,600. So this is how you are supposed to make the sum. I mean do the sum, I can say. Just a minute. Supposed to prepare evaluation account, partners capital account, cash and bank account and balance sheet. मैंने एक एक करके सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखी हुई है यहाँ पे. You can just pause the videos and record the, I mean write the same. प्रॉपरली अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझ के करना है. It will be easy for you. अच्छे से समझ के करोगे तो बेटर समझ में आएगा, right? So I hope you are clear with this particular question, the very first question of our long sums. Thank you.